वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा फारिया और हम केबीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, केबीएस एंड एएमआरएस दोनों की। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे अपनी वीडियो में, ये आपका सेकेंड यूनिट का दिस टॉपिक है, फेमिलराइजेशन विद द basic of Python programming, introduction to Python, features of Python, executing a simple hello world program, execution modes, interactive and script mode, Python character set, Python tokens, identifier, literal, operator, punctuator, variable, concept of left value and right value, use of comments। तो अपनी इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पाइथन। Python is a high-level interpreted programming language known for its simplicity and readability. It was created by Guido von Rossum and first released in 1991. Python supports multiple programming paradigms including procedural, object-oriented, non-functional programming. ओके तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही सिंपल होती है, इजी टू यूज होती है। जब आप इसका कोड लिखोगे तब आप समझोगे कि ये कितनी ज़्यादा आसान सी लैंग्वेज है और आपको इस लैंग्वेज को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज होने वाली है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन हो गया। पाइथन को गुइडो वॉन रॉसन ने रिलीज़ किया था 1991 में। ओके क्योंकि इसका नाम पाइथन ऐसे पड़ा क्योंकि गुइडो वॉन रॉसन को उस टाइम पे एक शो आता था, वो बहुत पसंद था, तो उसका नाम पाइथन से रिलेटेड था, तो इसीलिए उन्होंने उसका नाम पाइथन रखा। ओके ये मल्टीपल, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ पाइथन। Python, the first feature of Python, and this is the very important and interesting feature of Python, that Python is a dynamically typed language. It means Python is a dynamically typed, meaning you don't need to declare the type of variable. It has automatic memory management, garbage collection, a large standard library, and support multiple platforms. It means when you write the code of Python, you don't have to declare data type in Python. If you are familiar with a language like C, Java, and any other languages, when you write a code, you always used to declare, आपको हमेशा declare करना पड़ता था data type. If you are going to use integer value, you have to declare integer, this is an integer value, float, double float. But in Python you don't need to declare data types of variable. Okay, so that's why this is called a dynamically typed language. And the clear syntax. Python syntax is clear and easy to learn, making it suitable for beginners. So executing a hello program. If you want to print anything in Python language, you can simply write print then hello world. Your output will come. I will show you this. Like this is your ideally, इस पर आप अपना प्रोग्राम रन करोगे पाइथन का। इफ यू वांट टू प्रिंट लाइक, सॉरी, प्रिंट हेलो नेहा, then print enter C. Hello Neha, print. If you are familiar with the C and Java, if you want to print anything, you have to write like a 5 or 6 lines code for print single word. But this is very easy in Python. You can print anything by using only a print function. Okay, आप सिर्फ print function का use करके कुछ भी use कर सकते हो इसमें, ठीक है। Then next, एग्जीक्यूशन मोड, इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड, जब आप पाइथन प्रोग्राम को रन करोगे, आइडियली ओपन करोगे, तो आपको 2 मोड्स मिलेंगे। ओके, कौन कौन से? इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। मैं दिखाती हूँ। दिस इज योर इंटरेक्टिव मोड। जैसे ही आप आइडियली शेल ओपन करोगे, आपका इंटरेक्टिव मोड ओपन हो जाएगा। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट एनीथिंग, लाइक इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, a is equal to 20, b is equal to 10. Now you want to add, print a plus b,
सी 30. दिस इज द इंटरेक्टिव मोड. इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है, इफ यू वांट टू राइट 2 or 3 लाइंस कोड यू कैन इजीली एग्जीक्यूट ऑन दिस ऑन इंटरेक्टिव मोड. अगर आपको 2 या 3 लाइन का कोड लिखना है आप आसानी से इसमें लिख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. अगर आप प्रैक्टिस पर्पज से इस मोड को यूज़ करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आप लार्ज नंबर ऑफ कोड लिखना चाहते हो, एक बड़ा कोड लिखना चाहते हो, तो आपके लिए स्क्रिप्ट मोड बेटर रहेगा. स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, हम आइडियली ओपन करेंगे, देन न्यू फाइल. ओके, यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो कुछ भी. लाइक जो आपने उधर लिखा था a = 90, b = 80, c = 67. Now print a plus b plus c. Now you can also save this program, save as. Okay, इसका नाम दिया है थर्ड. दिस इज माई थर्ड प्रोग्राम, तो आई एम गिविंग थर्ड डॉट py इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग. जब भी आप इसमें कोई पाइथन का कोड सेव करोगे तो आपका py एक्सटेंशन को यूज करोगे. जैसे आप सी में .c का यूज करते हो, ठीक है, और जावा में यूज करते हो उसका एक्सटेंशन. इन द सेम वे पाइथन में .py एक्सटेंशन होता है. ठीक है, अभी आप इसको एग्जीक्यूट करना है. रन मॉड्यूल. You can see your program has executed. ठीक है, in this way. So now you can understand what is the script mode and what is the interactive mode. I think you can understand well what is script mode and what is interactive mode. Next, Python characters. Python characters set. Python supports Unicode characters, allowing you to use a wide range of characters in identifiers, string, and comments like characters A, B, C, D, E, F, G. And this is a decimal value. You can see this is a binary value. You all know कि कैसे binary value निकालते हैं, कैसे decimal value निकालते हैं. These are the character set. And the next is Python tokens. Keywords, identifier, literals, punctuators, all are Python tokens. अब इन सब में डिफरेंस है. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं हमारे पाइथन लैंग्वेज में जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और जिन्हें आप वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका एक रिजर्व, इनका कुछ काम होता है. लाइक इफ, एल्स, फॉर, वाइल, बहुत सारे टोकन्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपके घर में अगर आपका कुछ नाम रख दिया जाए तो फिर वो नाम हम किसी और का नहीं रखते हैं. तो फिर क्या होता है, जब हम जैसे हम आपको बुलाएंगे तो आपका भाई बहन भी आ सकती है ना. तो इन द सेम वे टोकन्स में भी कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं, उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है. तो हम पाइथन लैंग्वेज में उसको एज ए वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. ठीक है, एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग इन पाइथन. आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफाई नाम से समझिए, आइडेंटिटी जो आपको आइडेंटिफाई कराए, पहचान कराए. नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स. वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ठीक है, जैसे हम कुछ वेरिएबल, जैसे मैंने अभी एक प्रोग्राम बनाया था, ये सी, दिस इज द प्रोग्राम. a = 20, 20 इज अ वेरिएबल, b = 10, ये वैल्यू है. ठीक है, और आइडेंटिफायर क्या है? ये देखो, A. आइडेंटिफायर, नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स. वेरिएबल्स को यूज करने के लिए जो हम नेम देते हैं उनको कहते हैं वेरिएबल्स. ठीक है, आइडेंटिफायर्स. फंक्शन, क्लासेस, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नेम देते हैं, उनको आइडेंटिफायर कहते हैं. जैसे 20 इज अ वेरिएबल और उसको हमने स्टोर किया है एक आइडेंटिफायर में. ठीक है, दीज आर द आइडेंटिफायर एंड 20 इज द वेरिएबल. हमारे मेमोरी में 20 एक ए प्लेस पर सेव हो जाएगा. ठीक है, तो आइडेंटिफाई. लिटरल्स वैल्यू रिप्रेजेंट डेटा दैट कैन बी असाइंड वेरिएबल डायरेक्टली. एग्जांपल, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन. ओके, ऑपरेटर्स, सिंबल यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स and value. Okay,
symbols, like if you want to add two numbers you will use plus, if you want to subtract use minus, multiply the asterisk, divide, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दीज आर द सिम्बल्स जो हम यूज करते हैं किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. पंचुएटर्स symbols used for punctuation in Python syntax, example parenthesis, comma, colon, these are punctuators. ठीक है, बहुत इजी है, इजी टू यूज है. अभी वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं इन पाइथन. वेरिएबल्स यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू. यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्सप्लिसिटली. पाइथन इन्फर इन बेस्ड ऑन द असाइंड वैल्यू. जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं आपको नीड नहीं होती है उसका डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की. मैंने आपको पहले ही बताया पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज. यू डोंट नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप व्हेन यू आर यूजिंग द वेरिएबल्स इन पाइथन. Okay, so these are the data type. Data types are number, string, list, tuple, type conversion, int, float, string, boolean, list. Okay, so the next is concept of L value and R value. L for left value, R for right value. Means in assignment statement the left hand side refer to the target variable receiving a value, while the right hand side represent the value being assigned to the variable. ये देखिए, this is the a is equal to 20 left hand side value, this is 20 right hand side value. This is called the left value and right value. You can easily understand. हम लोगों ने आइडियली पे जो प्रोग्राम बनाया था इसके थ्रू हम आराम से समझ सकते हैं ये क्या होता है. ठीक है. एंड योर नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, व्हाट इज कमेंट. आपको पता है कमेंट्स क्या होते हैं. कमेंट्स आप ग्रेजुएशन करके आए हो, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कमेंट्स क्या होते हैं. कमेंट्स आर पाइथन स्टार्ट विद हैश सिंबल that are used to explanatory notes or disable certain lines of code. अगर आप किसी भी लाइन ऑफ कोड को कमेंट में लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा. कमेंट्स हम आइडेंटिफाई करने के लिए भी लिखते हैं. ठीक है. इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर. कमांड्स आर इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन. ठीक है. जब हम कमेंट्स को यूज करते हैं तो वो कोड हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है. तो हमने आज इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है. उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा. और अगर आपको कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.